Good morning, students. Myself B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Continue my class. Today we discuss about class 11. Now, chapter number 3. Trigonometric function. Before it, we already discussed about the exercise 3.1. Now, today we discuss about the first exercise 3.2 and after that exercise number 3.3. The very important chapter for trigonometrical function because all the formulas are used in class 12. So, please students be careful for this chapter and also learn the all formulas for trigonometry. You know, first we discuss about the first topic is my sign of the trigonometrical function. A circle draw in two axes, x-axis and y-axis. It is the unit circle. Unit circle means its radius is 1. So, what is the sign of in first quadrant, in second quadrant, third quadrant and fourth quadrant of the all trigonometric functions? In first quadrant, the all trigonometric functions is positive. Sine, cos, tan, cosec, sec and cot. In second and third and fourth, positive, which trigonometric functions are positive? In second, sine and cosec. Sine and cosec in first quadrant all are positive, and in second quadrant sine and cosec are positive and others are negative. In third quadrant tan and cot are positive, others are negative. Fourth, cos and sec are positive, others are negative. So you are learn, आपको याद रखना है पहले आपको किस किस में पॉजिटिव है. 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है मेन, साइन, कॉस एंड टैन. ये तीनों इन 3 क्वाड्रेंट में किस किस में पॉजिटिव है? तो सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट और फोर्थ में कॉस एंड साइन आर पॉजिटिव. तो बाकी के जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं. अब बात करते हैं अपन फर्स्ट जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं. 0 to π/2 means 90 degree and π/2 this is pi means 180 degree and pi to 3 π/2 means 270 degree and 3 π/2 to 2 pi means 360 degree. कंप्लीट एक राउंड जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है 360. बाकी फिर वापस वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है. तो किस पे पॉजिटिव है ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है. अगर π/2 प्लस है तो दैट मीन्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 माइनस है तो दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. पाई प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट. 3 π/2 plus means fourth and minus means third. 2 pi minus means fourth quadrant and 2 pi plus means first quadrant. तो यहाँ बात करते हैं अपन साइन की. साइन अपन ने डिस्कस कर ही लिया है. अब इन्हीं साइन के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 3.2 को अपन डिस्कस करेंगे. 3.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और सिंपल क्वेश्चन गिवन है. मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ मैं. इफ cos x इक्वल टू -3/5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपको कहा जाता है कि cos की वैल्यू गिवन है और बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है
इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आउट ऑफ 6 trigonometrical ratio, any one trigonometric ratio is given, then you can find out others all 5 trigonometrical ratio using simple 3 formulas: sin square plus cos square equal to 1, 1 plus tan square equal to sec square, and 1 plus cot square is equal to cosec square. And also sin and cos and tan all are opposite of cosec and sec and cot. इन सभी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, बाकी की ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बात करते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि मुझे थर्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है. नाउ ये 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, एक बार रिवाइज करते हैं. 10th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर इसी के बेसिस पे अगर cos x अगर आपको गिवन है तो यू कैन फाइंड द फर्स्ट साइन, बिकॉज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x. Cos is already given. 1 minus, what is cos? Cos is minus 3 upon 5. So right here minus 3 upon 5 and square is equal to 1 minus 9 upon 25 and is equal to, take 25 is the LCM. 25 minus 9 is 16 upon 25 and square root of is equal to sin x equal to 4 upon 5. So what is the value of sin x? 4 upon 5. And given that it is lie in third quadrant. In third quadrant, sin is the negative. So right here, answer is minus 4 upon 5. Quadrant अगर आपको given है तो use the sign according to its quadrant. Quadrant में कौन सा साइन, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन यूज करना है. ये हमेशा आपको याद रखना है. ओके स्टूडेंट, अब बाकी अगर आपने साइन फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया, तो यूज tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ऑटोमेटिकली आपको tan फाइंड कर लिया. tan फाइंड हो गया, साइन और साइन के बेसिस पे cosec इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंड sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एंड cot इक्वल टू 1 अपॉन tan. तो बाकी को ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, वन मोर एग्जांपल. Find the value of sin 31 pi upon 3. 31 pi upon 3 is the very more value. तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ. 31 pi upon 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 pi plus pi by 3. कुछ नहीं किया, 31 को 3 से मैंने डिवाइड किया तो 10 टाइम्स आ रहा है, तो 10 pi plus pi by 3 कर दिया. 10 pi plus 10 is the even number और 10 pi that means आप पहुँच जाते हो यहाँ पर, और प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पाई के अंदर प्लस पाई बाई 3, तो ये आ जाता है 10 साइन पाई बाई 3 इक्वल टू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू जो है वो होती है √3/2. इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उससे पहले मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos minus 1710 मीन्स 1710 डिग्री. इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ. फर्स्ट cos minus x इक्वल टू cos x, ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं. आप इसको ब्रेक कर सकते हो क्योंकि cos minus x इक्वल टू cos x होता है. ये क्यों होता है बाद में डिस्कस करेंगे अपन. और cos 1713 को 10 को मैं ब्रेक कर रहा हूं. 5 into 360 minus 90 and is equal to cos 90 and cos 90 is 0 डिग्री. अब हम बात करते हैं साइन, ये जो पाई जो चेंज हो रहा है कि सर दिस माइनस 90 हाउ cos 90 इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कुछ फॉर्मूलेज, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है एंगल के बेसिस पे, और वो किस तरह से आपको याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ. आपको याद रखना है पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री एंड 90 डिग्री मीन्स जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से वो आपस में इंटरचेंज होते हैं. एंड 180 एंड 360 मीन्स पाई एंड 2 पाई, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपस में चेंज नहीं होंगे. ये आपको हमेशा याद रखना है. अभी हम उसी के बेसिस पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम अभी हम डायरेक्ट हमको याद रखना है. ध्यान क्या रखना है, सिंपली राइट हियर साइन माइनस एक्स. अब माइनस एक्स का मीनिंग क्या हुआ, ये पॉजिटिव एक्स है एंड दिस एंगल इज माइनस एक्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
माइनस इसका मीनिंग क्या हुआ, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, इसलिए यहाँ पे फोर्थ के अंदर साइन तो नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स, बट कॉस इज पॉजिटिव, तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ये माइनस कॉस कैसे मैंने लिख दिया पॉजिटिव। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सिमिलरली 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 10x, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं x, एक बार अपन बात करते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां पे एक पहले मैं लिख देता हूं, साइन एंड कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे एंड टेन एंड कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे एंड फाइनली सेक एंड कॉसेक ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किस में इंटरचेंज हो रहा है ये पहले आपको याद रखना है। तो चलिए पाई बाई 2 में इंटरचेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे दोनों में कॉस थीटा लिखना। पाई बाई 2 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही लिखना है। माइनस में मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव ही रहेगा। बात करते हैं हम साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा। पाई में इंटरचेंज नहीं होगा, इसलिए एज इट इज साइन थीटा एंड एज इट इज साइन थीटा। बट पाई प्लस मीन्स थर्ड एंड पाई माइनस मीन्स सेकंड, इसमें ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन इसमें ये नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है, तो ये साइन का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही सिमिलरली आपको कॉस, टेन, सेक एंड कॉसेक के लिए आपको याद रखना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बुक में ऑलरेडी ये फॉर्मूलेस ऑलरेडी गिवन है, तो आपको प्लीज़ ये फॉर्मूलेस बुक में देखकर और एक बार लिख लीजिएगा। बुक में कंप्लीट सारे फॉर्मूलेस और कंप्लीट आपको एक टेबल भी गिवन है साइन की कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। एनसीईआरटी बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें सभी आपको ये गिवन है। यहाँ लिखूंगा, बुक में गिवन है, मैंने समझा दिया है इंटरचेंज का, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक टू कॉसेक, कॉसेक टू सेक। इंटरचेंज कैसे करना है, किस में हो रहा है ये ध्यान रखना है। पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 में साइन ये इंटरचेंज होंगे, पाई एंड 2 पाई में इंटरचेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। प्लस और माइनस का मीनिंग समझा दिया है। प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस थीटा, दैट मीन आप कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट पाई बाई 2 यहाँ है तो ये प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही पाई प्लस मीन्स पाई प्लस पाई यहाँ आ रहा है तो पाई प्लस मीन्स आप थर्ड में पहुंच रहे हो और पाई माइनस मीन्स आप सेकंड में पहुंच रहे हो। तो माइनस मतलब ऐसे जाना है, प्लस मीन्स ऐसे जाना है। दैट मीन्स अगर माइनस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है और प्लस है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। और मूव करने के बाद में आपको ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि आप किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं। जिस क्वाड्रेंट में आप लाइक कर रहे हैं उस क्वाड्रेंट में वह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग उसी का साइन आपको यूज करना है। प्लीज ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, माइनस एक्स का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था और अब अपन बात करते हैं सम की। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ बी पार्ट साइन ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी की जगह अपन एक्स और वाई ले लेते हैं इजीली बुक के अकॉर्डिंग। बुक में आपको एक्स और वाई गिवन है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। बुक को देखोगे तो यहाँ मैं ए लिखूंगा, वहाँ बुक में एक्स लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स और वाई के साथ में चलते हैं। एक्स प्लस माइनस वाई, साइन के साथ में अगर फॉर्मूला लिखते हो तो साइन एक्स एंड कॉस वाई एंड प्लस कॉस एक्स एंड साइन वाई। यहां अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। ये आपको याद रखना है प्लीज फॉर्मूले के साथ में। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूले के साथ में जब आप फॉर्मूले लिखोगे तो ये आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से आपको कॉस के साथ में चलना है और इसी तरह से आपको
कॉस x प्लस माइनस वाई। कॉस में क्या होगा, दोनों पहले कॉस होंगे, कॉस x कॉस y, और फिर आप लिखोगे साइन x साइन y। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। इसमें थोड़ा सा आपको उल्टा चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूलेज जो होंगे, कितने फॉर्मूलेज हैं मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, पाई अपन लिख दिए, पाई का मैंने लिखा दिया। 10 का अपन चलते हैं। 10 के साथ में 10x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 10, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और फिर लिखेंगे 10y अपॉन 1। अब यहाँ पे साइन ऑपोजिट लोगे, ऊपर पॉजिटिव आ गया तो नीचे नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसके साथ में और यहाँ दोनों एक साथ में 10x एंड 10y, ये तो हो गया आपके साथ में 10। कॉट का फॉर्मूला अगर यहाँ पे इसके साथ में लिखते हैं तो कॉट का थोड़ा सा चेंज होगा, कॉट x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे कॉट x एंड कॉट y, और साथ में अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। और नीचे आप लिखेंगे पहले कॉट, यहाँ पे पहले y लिखना, और पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, और कॉट नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और कॉट y। ऐसे ही मैंने दोनों को एक एक साथ लेके चल रहा हूँ कॉट के साथ में। और अब अपन एक फॉर्मूला और चलते हैं। अब ये तो हो गया आपका बी पार्ट, और सी पार्ट जो है वो है 2x के साथ में। पहले हम लेते हैं साइन 2x। साइन 2x जो है वो होता है 2 sin x cos x। 2 sin x cos x, और इसको अगर अपन 10 की टर्म में लिखते हैं तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सभी फॉर्मूलेस को अपन इजीली पहले के फॉर्मूलेस को अपन यूज करते हुए हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसे ही cos के साथ में cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। 3 फॉर्मूले यूज करेंगे, एक बार ये, और sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक बार हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और इसी को 10 में लिखना है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। सभी गिवन है बुक में वैसे तो। ये हो गया साइन का और कॉस का, और अब आते हैं 10 के साथ में। 10 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो हम 2x के साथ में भी हो गए, सम और डिफरेंस के साथ में भी हो गए, और अब हम आते हैं 3। यहाँ पर हम बात करेंगे 2x की बात होगी साइन के साथ, cos के साथ, tan के साथ, और अब हम बात करते हैं 10 2x हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की, और लास्ट उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 3x के साथ में क्या फॉर्मूलेज हैं वो आप देख लीजिए एक बार। कंटिन्यू। साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin स्क्वायर x। 3 sin x माइनस 4 sin स्क्वायर x and cos 3x equal to 4 cos square x minus 3 cos x and tan 3x equal to 3 tan x minus tan square x upon 1 minus 3 tan square। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूलेज में एक फॉर्मूला और रह जाता है लास्ट, साइन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई कॉस एक्स माइनस साइन कॉस वाई। बुक में ऑलरेडी आप कर सकते हैं डिस्कस, और उसके बाद में लास्ट 2 फॉर्मूलेज के साथ में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट,
फॉर्मूलेस को आप याद करोगे, फॉर्मूलेस के याद करने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट दिस और फॉर्मूला आप हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले फॉर्मूले को आप लर्न करें ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, वरना आपको ये लगेगा सर ये आप कर क्या रहे हो। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड गुड।